My name is Hifza. I am the teacher of TKS Senior Campus. Okay, so today, before starting our lecture, I want to share a good message. So today's good message is the beautiful thing about learning is that no one can take it from you. Okay. Now, before moving towards today's lecture, I want to ask some questions regarding the previous lecture. Hope you have revised your previous lecture. Okay, I'm going to ask questions one by one. Yes, Zarmeena Khan. बच्चे unmute your microphone. Hurry up. Zarmeena Khan. बच्चे, can you hear me? Yes, sir. Okay, बच्चे, tell me how many times the man visited the doctor? कल पढ़ाया था ना मैंने. Have you revised your lecture? Zarmeena बच्चे, can you hear me? Once. Yes, you want to answer? Once. जी बच्चे. 1 year. 1 year. Once a year. Excellent. Good. Okay. Yes, Hafsa Umar. बच्चे, unmute your microphone. Hurry up. Okay, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, बच्चे, the question for you is that what did the doctor advise to the man who was overweight? What advice the doctor gave? To cut his double chin. No, No. ma'am. Yes. To lose his weight. Yes, to cut down his food intake. Okay, lose उसका weight जो है lose कैसे होगा? जब उसका food intake कम हो जाएगा. Good. Okay, yes, Sohail Khan. बच्चे, can you hear me? Sohail Khan. Okay, बच्चे, the question for you is what was the name of the doctor? मैम मेरे पास बुक नहीं थी. बच्चे, आप कल प्रेजेंट थे? यस मैम मैं पसंद था. आज है आपके पास बुक? नो मैम. बच्चे, काइंडली परचेज कर ले. ओके, आपसे लेक्चर मिस हो जाएगा. यस मैम. ओके, यस, सना फिजा. बच्चे, अनम्यूट योर माइक्रोफोन. हरी अप. कैन यू हेयर मी? सना जी. बच्चे, कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am. Okay, the question is the same for you. What was the name of the doctor? Ma'am, मैंने क्लास अटेंड नहीं की. ओके बच्चे, आज कंसंट्रेट करें. ओके, यस, हसन जाहिद. हसन जाहिद, कैन यू हेयर मी? जी बच्चे, द सेम क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर? Dr. Beg. Excellent. Dr. Good. Beg. Good. Excellent. Okay, now moving towards today's lecture. सब अपनी English course book निकाल ले. This is your English course book. Can you see? Open it on page number 12. Okay? Page number 12, the last paragraph. We are going to start. Okay. So the last paragraph is apparently snakes do not like their pungent aroma. Okay बच्चे, कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि जो इस मैन की बात हो रही थी कि इस चाइल्डहुड में क्या होता था. हिज ग्रैंड मदर यूज टू डेकोरेट और यू कैन से सराउंडेड हर हाउस विद द फ्लावर्स. कौन से फ्लावर्स से? मैरीगोल्ड्स. ओके, उससे पूरे घर को डेकोरेट किया जाता था. एंड ऐसा क्यों किया जाता था? बिकॉज शी बिलीव्ड दैट दे केप्ट द स्नेक्स अवे. तो स्नेक्स को ये दूर कैसे रख सकते हैं? बिकॉज ऑफ द पंजेंट एरोमा. पंजेंट एरोमा मीन्स यहाँ आपके पास लिखा हुआ है अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. ये है बच्चे, आपको नज़र आ रहा है इन द येलो ब्लॉक. पंजेंट अरोमा मीन्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. ओके,
यानी तेज़ खुशबू जिसकी होती है। तो इन फ्लावर्स की काफ़ी तेज़ खुशबू होती है, तो उसकी दादी का बिलीव ये था, वो ऐसा मानती थी। अब एक्चुअल में ये बात ट्रू है या नहीं, लेकिन उसकी दादी ये बिलीव था उसका कि इसकी स्मेल से जो स्नेक्स है वो दूर रहते हैं। ओके, एंड नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपेरेंटली? अपेरेंटली मीन्स as far as one see. In Urdu it is bazahir. Okay, also the meaning of pungent aroma, it means strong smell, तेज खुशबू. Okay, write it down on your book. बच्चे, many of you are asking the question कि हमने ये मीनिंग्स नीट कॉपी पर करने हैं या बुक पर. तो बच्चे, इट इज़ फॉर योर बुक. ओके, जब नीट कॉपी पर काम स्टार्ट होगा आई विल लेट यू नो. मैं जब तक ना कहूँ तो आपने स्टार्ट नहीं करना कॉपी पे काम. ओके, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, देन यू विल राइट इट डाउन. ये आपके बुक के मीनिंग से, ठीक है. बुक की एक्सप्लेनेशन होती है तो उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है यू कैन राइट इट डाउन. ओके ओके क्लास. So, I too believed in this folklore until I was told by an expert on reptiles that snakes do not have a strong sense of smell and would be impervious to the scent of flowers or other odors. अच्छा, the author is saying कि मैं भी इस बात पे यकीन करने लग गया था कि ये फ्लावर्स जो हैं इनकी तेज़ खुशबू स्नेक्स को घर से दूर रखती है, ठीक है. लेकिन अंटिल कब? कि जब तक एक एक्सपर्ट ने उसे नहीं बताया था कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ऐसा नहीं होता. ओके डियर. इम्परवियस का मतलब क्या है आपके पास? नॉट इफेक्टेड बाय, ठीक है, कुछ असर ना होना. इन उर्दू इट इज़ कुछ असर ना होना. फोल्कलोर जो पिछले पैराग्राफ में था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट? स्टोरी ऑफ अ कम्युनिटी पास्ड थ्रू जनरेशंस, ठीक है. अक्सर आपने सुना है ना कि ये एक कहावत है या हमारे बुज़ुर्ग ने या आबा व अजदाद ने जो बात कही होती है, दैट इज़ नोन एज अ फोल्कलोर, अ स्टोरी. ओके, तो इसका मतलब स्टोरी है. और इम्परवियस का मतलब है कि नॉट इफेक्टेड बाय. इन उर्दू इट इज़ कुछ असर ना होना. राइट इट डाउन ऑन योर बुक. एंड येस, ओडोर्स. ओडोर्स भी मैंने अभी आपको बताया है. ओडोर्स मीन्स स्मेल. ओके, महक. इन उर्दू इट इज़ महक. सेंट आपके पास पंजेंट अरोमा एंड ओडोर्स हैव द सेम मीनिंग. ओके, बट पंजेंट अरोमा हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल. इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग स्मेल. सेंट का मतलब है जस्ट यू कैन से खुशबू. ओडोर्स का मतलब भी है स्मेल या फिर महक. बच्चे, आई विल शेयर द पिक्चर एज वेल इन द ग्रुप. जो मिस हो गए हैं आपसे मीनिंग्स, तो वो यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर बुक. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर. ओके, मे बी सो, बट आई डोंट रिकॉल एवर सीइंग अ स्नेक इन ग्रैनीज गार्डन, although I did see them elsewhere. However, we did have plenty of frogs thanks to the disused fountain installed by my grandfather but neglected after his death. Okay, the author is saying maybe so I don't recall ever seeing. Okay, the author is saying कि हालांकि पूरे घर को इन फ्लावर से सजाया गया था, लेकिन स्टिल मैं जब तक बचपन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रहा था, आई डिडंट एवर सी अ स्नेक ओवर देयर. ओके, मैंने कभी घर में स्नेक्स नहीं देखे. बट व्हाट डिड ही सी? उसने क्या देखा? उसने फ्रॉग्स देखे थे. प्लेंटी ऑफ फ्रॉग्स. प्लेंटी मीन्स मैनी, बहुत सारे. ओके, बहुत सारे फ्रॉग्स देखे थे. थैंक्स टू द डिसयूज्ड फाउंटेन. डिसयूज्ड का मतलब होता है दैट इज़ नॉट एबल टू यूज़, ठीक है, जो यूज़ ना हो रहा हो. ओके, तो फाउंटेन किसे कहते हैं? हियर इज़ द पिक्चर ऑफ द फाउंटेन. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 13. द पिक्चर ऑफ द फाउंटेन इज़ हेयर. फाउंटेन किसे कहते हैं? अ नेचुरल स्प्रिंग ऑफ वाटर, और इन उर्दू इट इज़ फव्वारा. सही है. तो ये फाउंटेन था इसके घर में, और ये कह रहे हैं द ऑथर इज सेइंग कि आई डिड नॉट एवर सी अ स्नेक ओवर देयर. मैंने हाँ क्या देखा? प्लेंटी ऑफ फ्रॉग्स देखे थे इस फाउंटेन में. बट द फाउंटेन वॉज डिसयूज्ड, मीन्स दिस वॉज ऑफ नो यूज़. ओके, सो installed by my grandfather but neglected after his death.
एंड ये फाउंटेन किसने बनाया था? इंस्टॉल्ड का मतलब टू मेक, ओके। बनाया किसने था? हिज ग्रैंडफादर। और व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नेग्लेक्टेड? यू कैन सी नेग्लेक्टेड मीन्स टू इग्नोर, नज़रअंदाज करना, ओके। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नेग्लेक्टेड? नेग्लेक्टेड मीन्स टू इग्नोर, नज़रअंदाज करना। यानी कि जब उसके ग्रैंडफादर, उनकी डेथ हो गई थी, जब वो फोर्थ हो गए थे, तो आफ्टर दैट इस फाउंटेन को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता था, इग्नोर किया जाता था। एंड फिर बहुत सालों बाद ये क्या बन गया? दैट वॉज ऑफ नो यूज़, ओके। यूज़ के काबिल नहीं रहा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, गुड। The fountain had not functioned for a couple of years, but the little reservoir in which it stood had filled up with rainwater and was now covered with water lilies. Okay, what's the meaning of? अच्छा, यहाँ पे आपको कह रहे हैं the fountain had not functioned for a couple of years. ये जो फाउंटेन था आफ्टर his grandfather's death, this was completely ignored. ठीक है, तो जब आप एक चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो वो क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। तो ये फाउंटेन भी बिल्कुल ख़राब हो गया था एंड दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। एंड रेन वाटर से वो फिलअप हो गया था, ठीक है, मतलब उसमें पानी तक वो लोग नहीं चेंज करते थे और जो बारिश का पानी होता था उससे वो फिल हो गया था एंड वॉज नाउ कवर्ड विद वाटर लिलीज। ओके, वाटर लिलीज आर दीज पिंक फ्लावर्स, यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। ये इन फ्लावर्स से फिर क्या हो गया था? कवर अप हो गया था, ठीक है, इतने सालों बाद। ओके, One day, after an expedition to the canal head work, I brought home some small fish in a bucket and introduced them to the lily pond. I hadn't paid much attention to the tadpoles swimming around in the buckets. Okay. So the author is saying after so many years, मैंने क्या किया? I brought home some small fish. मैं कुछ छोटी fishes ले आया घर और उसको मैंने क्या किया? उसको मैंने इसमें डाल दिया। You can see उसके हाथ में क्या है? बकेट है, ठीक है, उसमें छोटी छोटी फिश है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस देम टू द लिली पॉन्ड का मतलब है कि उसने वो पॉन्ड में वो फिशेस डाल दी बगैर पानी को चेंज किए। वेल, द फिश डाइड एज दे वर यूज्ड टू फ्रेश रनिंग वाटर एंड नॉट स्टैग्नेंट वाटर, बट द टैडपोल्स डिड वेरी वेल एंड बिफोर लॉन्ग वी हैड फ्रॉग्स लीपिंग ऑल ओवर द प्लेस। ओके बच्चे, who have raised the hand? जी बच्चे, unmute your microphone, you want to ask? Can you hear me? जी बच्चे, ask your question. बच्चे, can you hear me? Hurry up. ओके, सो अब द ऑथर क्या कह रहे हैं आपके पास? दैट मैं जो फिश लाया और आई हैव इंट्रोड्यूस्ड देम टू द पॉन्ड, सून ऑल द फिशेस डाइड। इसका मतलब क्यों? आपको पता है ना कि फ़िश जो है फ्रेश वाटर में ज़िंदा रहती है। तो इस जो आपके पास फाउंटेन था इसमें तो रेन वाटर था, वो भी काफ़ी टाइम पुराना, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर मीन्स जो पानी खड़ा रहता है या यूजलेस, यू कैन से, एंड उर्दू इट इज़ कॉल्ड गंदा, ठीक है, गंदा पानी जो होता है। हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेंट, गंदा, एंड इन इंग्लिश इट इज़ यूजलेस। आल्सो राइट द मीनिंग ऑफ एक्सपीडिशन, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, किसी ख़ास मकसद के लिए, ठीक है। हरी अप, राइट इट डाउन ऑन योर बुक। एक्सपेडिशन मीन्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, इन उर्दू इट इज़ ख़ास मकसद, एंड स्टैग्नेंट मीन्स यूजलेस, गंदा, ओके। So all the fish died soon because the water was stagnant water, ठीक है, it was not a running water, क्योंकि वो फिश जो होती है वो फ्रेश वाटर में ज़िंदा रहती है और जो पानी ऐसे बारिश का पानी हो काफ़ी टाइम पुराना हो तो उसमें फ़िश मर जाती है क्योंकि वो पानी में काफ़ी जर्म्स होते हैं, ओके। वेरी सून द फ्रॉग्स मल्टीप्लाइड। टैडपोल्स किसे कहते हैं? टैडपोल्स जो है फ्रॉग की काइंड है, ओके। यस बच्चे, यू वांना आस्क समथिंग? जी बच्चे, कैन यू हेयर मी?
Unmute your microphone, hurry up. Okay, so this was, जी बच्चे, can you hear me? Okay, moving towards this paragraph, they would come into the veranda at night and keep us awake with their incessant singing and warbling. Okay, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फ्रॉग्स की बात हो रही है, ठीक है. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरेंडा? इन उर्दू इट इज़ बरामदा, जिसको बरामदा कहते हैं, ये वो है, ठीक है. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फ्रॉग्स की, कि दे यूज टू अवेक अस एट नाइट विद देयर साउंड, क्योंकि उनकी आपने आवाज़ सुनी है ना. So incessant means never stopping and warbling means singing with rapidly changing notes. Okay, so आपके पास इन दोनों का मतलब ये है कि फ्रॉग्स की आवाज़ जो कंटिन्यूसली वो लोग सुन रहे होते थे एट नाइट टाइम. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट दे यूज टू गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, वो रात को फिर उठ जाते थे बिकॉज ऑफ दीज फ्रॉग्स एंड इनकी आवाज़ों से. ओके, सो आई कांट स्लीप अ विंक, कंप्लेंट आंट मेबल, हु वॉज सेंसिटिव टू नॉइस एंड एलर्जिक टू चॉयर्स, मेड अप इंटायरली ऑफ बेस्ट सिंगर्स. ओके, आई कांट स्लीप अ विंक, हु सेड दिस? कंप्लेंट आंट मेबल. किसकी आंट है ये जो है ऑथर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. सो शी वॉज एलर्जिक टू द साउंड ऑफ द फ्रॉग. सो शी इज सेइंग दैट आई कांट स्लीप अ विंक, यानी मैं एक लम्हे के लिए भी सही से नहीं सो सकी. सो दिस वॉज इनफ फॉर टुडे. इफ़ यू वांट आस्क सम क्वेश्चन यू कैन आस्क. हरी अप बच्चे, आप इसको रीड कर लें. आई विल आस्क क्वेश्चंस टुमारो. ओके, मस्ट रीड इट. थैंक यू.